बैत से तो पहले उसी के ताल्लुक से बेशक हदीस बेशक शरीफ पढ़ के बेशक उनकी फजीलत पर शुरू करके आगे बढ़े। समझो आपकी इरशाद इरशाद सुनिए। عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن رواه الترمذي۔ ساتھ ایک حدیث اور سنیے۔ عن زید بن اسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه۔ یہ دو حدیثیں ہیں، توجہ آپ کی۔ ارشاد ارشاد پوری دنیا اسلام میں حدیث کے تعلق سے 6 سب سے مشہور کتابیں ہیں، سب سے مشہور، ورنہ حدیث کی کتابیں 500 سے زیادہ ہیں، 500 سے زیادہ کتابیں ہیں، لیکن ان 500 میں سب سے زیادہ مشہور جو کتابیں ہیں وہ 6 ہیں۔ کون سی 6 ہیں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ انہی کو کہا جاتا ہے سیاہ ستہ۔ آپ نے تقریروں میں یوٹیوب پہ سنا ہوگا، اکثر گمراہ کرنے والے لوگ یہی بولتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں لکھا ہے، یعنی ان 6 کتابوں میں ہمیں حدیث مصطفیٰ بتاؤ تو مانو۔ انہی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف، جس کی روایت کرتا 2 حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ حدیث ہے، حدیث کیا سنیے، راوی کا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد علی منی و انا منہ، میں علی کا ہوں، علی میرے۔ علی منی و انا منہ، علی میرے ہیں، میں علی کا ہوں، وہو ولی کل مؤمن، اور علی ہر مؤمن کے ولی۔ سبحان اللہ بیشک بیشک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، نبی کریم فرماتے ہیں من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی المولا، ولی اس کے مولا۔ ان 2 حدیثوں میں 2 لفظ آئے ہیں، یہی سنیے توجہ سے، ایک ولی، دوسرا مولا۔ کون لفظ آیا ہے؟ مولا۔ ایک علی، دوسرا مولا، مولا کا۔ اب یہی 2 لفظ قرآن پاک میں لیا ہے، توجہ سنیے گا، حدیث میں ان 2 لفظوں کو مولا علی کی طرف منسوب کیا۔ کہا کیا حضور نے کہ علی کیا ہے؟ ہر مومن کے مولا ہے۔ علی کیا ہے؟ ہر مومن کے مولا ہے۔ یہ بات کہی۔ اب قرآن پاک اللہ رسول نے ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہی اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ مولا ہے اور جبرائیل مولا ہے اور نیک لوگ، نیک ایمان والے مولا ہیں۔ حدیث میں 2 لفظ آیا ولی اور مولا کا، قرآن میں 2 لفظ آیا ولی اور مولا کا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں، میں وہ مولا ہوں۔ حدیث میں نبی کریم نے مولا علی کو کہا کہ علی تم ولی ہو، علی تم مولا ہو۔ قرآن میں کیا کہا کہ اللہ ولی ہے، اللہ مولا ہے۔ حدیث میں مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں کہ علی ولی ہے، علی مولا۔ اب سمجھیے گا، یہی گمراہ کرنے والے لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ ان 2 لفظوں کا ترجمہ بتا دیں، ولی اور مولا کا۔ جو ترجمہ آپ کریں گے علی کے لیے، وہی ترجمہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کے لیے۔ یہی ہے شان اہل بیت کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کو کتنا بلند مقام دیا کہ اس لفظ سے اپنے آپ کو جوڑا اور اسی لفظ سے اپنے نبی کریم سے علی کو جوڑا۔ جو ترجمہ تم ولی کا کرو گے اللہ کے لیے، وہی ترجمہ تمہیں کرنا پڑے گا علی کے لیے۔ جو ترجمہ تم کرو گے مولا کا اللہ کے لیے، وہی ترجمہ تمہیں کرنا پڑے گا علی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ولی اور مولا ان 2
बड़ी पकड़ है इसमें। चाहे जितने भी मकतबे फिक्र के लोग हों, काले कपड़े वाले हो चाहे सफेद जिस भी रंग के हो, अगर कहें कि अली वली है यानी खलीफा है, तो बताओ कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह वली, तो क्या अल्लाह मुसलमानों का खलीफा? बोलिए, अल्लाह अगर वली का माने आप कहें खलीफा, तो अल्लाह ने कुरान में खुद को कहा है कि अल्लाह वली है, तो क्या अल्लाह मुसलमान का खलीफा है? अल्लाह तो मुसलमान क्या पूरी कायनात का मालिक और खालिक है। बेशक बेशक आपको करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब आप कहें कि वली का तर्जुमा है दोस्त, वली का तर्जुमा है मददगार, बात ठीक है कि यही दो लफ्ज, दो तर्जुमे इन लफ्जों के लिए सही है, क्योंकि अगर कोई और तर्जुमा वली या मौला का करेंगे वही अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करना। आप कहें कि मौला का माने वाला नाउजुबिल्लाह अल्लाह मौला यानी अल्लाह वाला। अगर आप मौला का माने करेंगे खलीफा का, तो नाउजुबिल्लाह अल्लाह खलीफा। यही शान अहले बैत है जो हिकमत से रब ने छुपा रखा। ये जगह जिन अल्फाजों से खुद को कहा उन्हीं अल्फाजों से अहले बैत कह दिया कि सुबह क़यामत तक हर मोमिन का वली अली है, यानी हर मोमिन का मददगार अली। सुबह क़यामत तक के लिए हर मोमिन का मौला अली है, अली मौला अली। लोगों को इन नाम लेने से तकलीफ होती है। अब एक सवाल और लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती है जब कोई कहता है या अली मदद, या अली मदद। मदद जब कोई कहता है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं कि या अली मदद क्यों कह रहे हो, तो शिर्क। तो हम कहाँ कह रहे हैं? अल्लाह ने जिसको भेजा है दीन सिखाने के लिए उसी ने बयान किया है कि अली मौला अली है। हम थोड़ी अपने पास से कह रहे हैं। और कहो कि तर्जुमा ये नहीं, ठीक है कुरान का तर्जुमा तुम बदल दो, हदीस का मदद। आप कुरान पाक के तर्जुमे को बदलिए, हम हदीस से बदल देंगे। अल्लाह ने कुरान में खुद को कहा कि मैं वली हूँ, यानी मददगार हूँ हर मोमिन का, और रसूल ने हदीस में बयान किया कि अली हर मोमिन के मददगार है। जब मददगार है पूरे कायनात ने कह दिया, तो या अली मदद कहना सुन्नत हुआ, सिराते मुस्तकीम हुआ। यही जिसे आप सूरह फातिहा में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है, ये सियासत में जाती इसलिए हदीस का बयान है कि मौला अली को या अली मदद कहना, अली को मदद के वास्ते पुकारना बिल्कुल जायज है। और जो करीम ने उनको बनाया है, अल्लाह ने उनको ये इज्जत अता की। अगर आप नहीं देंगे तो फिर वही बात है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं। बेशक, जो यहाँ नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं। कहीं का नहीं रह जाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मिलत इस्लाम में अहले बैत की तारीफ उनकी फजीलत में बेशुमार है। ये मुख्तसर मैंने आपको छाट के बताई ताकि जल्दी से बात समझ में आ जाए। वही मामले हैं जो गुज़श्ता सालों में हमारे अकाबिल उलमा ने इन सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन नई पीढ़ी आ रही है और तरीका अब गुमराही का बदल गया है। पहले लोग गली गली फिरते थे, अब लोग घर घर घुसे मोबाइल। 5-6 तलबा सर यहाँ के जो किस्म जाते वो गूगल से बदल दिए, सब ठीक हो गया। यहीं से अभी यहीं तत्काल बात है। 5-7 तलबा ऐसे जो हाफिज़ शमसुद्दीन साहब के आगे पीछे रहते थे, तो गूगल पे आके उनका पूरा हदीस ये याद है। अली शेर की बात की तो शेर सुन ली। शेर को होता क्या है? जानते हैं शेर का मतलब क्या है? बोल लेते हैं कि की बरात में लगे शेर को होता क्या? शेर का माने होता है मिलाना। क्या माने होता है? मिलाना। मिलाना। अब यही सवाल है, बड़े बड़े उलमा ने ये बात कही, शायद जानते भी ना हो कि हिंदुस्तान में जो लोग
ये सिर्फ काफिर है, मुस्लिम नहीं है। है। तो मुस्लिम होने के लिए शर्त है क्या कि अल्लाह के साथ किसी और को खुदा माने, तब वो कहलाएगा मुस्लिम। इसमें शिर्क, जब यहाँ अल्लाह के सिवा किसी को माबूद मानने जानने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो शिर्क कहाँ से? शिर्क का मतलब होता है मिलाना। मिलाए किससे? खुदा। कौन सा मुसलमान है गिरी से गिरी पत्थर हालत का मुसलमान, उससे पूछ लीजिए तो कहेगा हम अल्लाह के साथ किसी के क्या हकीकत ये है कि जानता तो वो अपने रब में नहीं है, लेकिन वो अलग ये बात कह देता है कि हम अल्लाह के साथ किसी को बुखार तारीफ बयान करते हैं अल इशराकु बिल्लाहि फिल इबादत व शिर्क। शिर्क वो है कि इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक यानी अल्लाह को सजदा करे उसके बाद किसी और को भी सजदा करे। इबादत की नियत से याद रखिएगा, इबादत की नियत शर्त है तब शिर्क हो। अगर आपको शिर्क करने का नाम लेने का मन हो तो इबादत की नियत से किसी को सजदा कर दीजिए। जब से पैदा हुए अब तक जितना कुछ किया है सब खत्म, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी भी आके हैं। ये शिर्क की क्वालिटी है। शिर्क का मतलब होता है मिलाना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मिलाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है कि वो अल्लाह के साथ किसी को इबादत दिलाए, चाहे वो मज़ारों पे चादर चढ़ाता हो, चाहे फूल चढ़ाता हो, ये वही पैसा लगे, तब भी वो खुदा नहीं है। बेशक अकीदा हरगिज़ ये नहीं होता। यही चीजें हैं लोग गुमराही फैलाते। वो तो शिर्क हो गया। शिर्क कैसे हो जाएगा? जब तक उसने इबादत की नियत की नहीं, इबादत की नियत से सर को झुकाया नहीं, सर को सजदे में रखा नहीं, उससे हुआ कैसे हो जाएगा? इसीलिए कहना पड़ा कि हज़रत सरकार सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजदा था, सजदाए ताज़ीमी हज़रत यूसुफ की शरीयत। और उन्होंने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उन तमाम चीज़ों से रिहाई दिलाई और वो मिस्र के बादशाह बने, जब उनके वालिद तशरीफ लाए उन्होंने अपने वालिद के लिए सजदाए ताज़ीमी किया था, इबादत का नहीं। लेकिन हमारी शरीयत में अल्लाह के रसूल ने सिर्फ सजदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रखा, किसी और के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं, हराम। चाहे वो अपने पीर की ताज़ीम के लिए करे, चाहे जिस चीज के लिए। सजदा सिर्फ वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी को। आप देखते होंगे सोशल साइट का जमाना है, लोग मुख्तलिफ इस तरह की आपको तस्वीरें वीडियो मिलती है, इसमें लोग देख रहे हैं सजदा करना है, ये करना है, वो करना है। इन्हीं सब वीडियो को टारगेट बना कहा जाता है कि बड़े ये लोग ये सब कौन सी लिखा है। अगर ऐसा होता तो आला हज़रत का वो मशहूर जमाना शेर, जिसको आज के लोग खुद कहते हैं कि इनसे बड़ा मुवहिद कोई नहीं। आला हज़रत जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, जब हुजूर ने पर्दा उठाया, आला हज़रत ने हुजूर की ज़ियारत की ना, तो उनका शेर सुनिए, कहते हैं सजदे को दिल में बेपना पेश नजर वो नौबहार शोकिए सर को अदा होती यही इम्तिहान है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि दिल मसला की सब सजदे में लग दूं, लेकिन शरीयत मुस्तफा ने रोक लिया कि नहीं नहीं, ये सिर्फ अल्लाह। कैसे हम मान ले? सिर्फ कोई करता भी होगा तो ताज़ीम के लिए करता होगा, गायक है उसे, लेकिन इबादत के लिए हरगिज़ किसी भी हुजूर की मज़ार पे जाना या आना, वहाँ रहना बैठना करना कुछ भी शिर्क नहीं है, किसी सूरत से शिर्क नहीं। या आप एक भी कोई वजह बता दें शिर्क होने की, शिर्क हो गई। खुदा मानता ही नहीं। कब्र में आने का मतलब यही नहीं खुदा है ही नहीं। अगर कब्र हो गई तो मतलब कोई इंसान, कब्र होने का मतलब ही यही है कि वो खुदा होने के लायक नहीं है। जब वो
खुदा होने के लायक है ही नहीं, तो उनको खुदा कहने से वो हो जाएगा? नहीं। जाने मिलते सामने इन चीजों को समझिए, अपने उलमा करीब बैठिए, इन सब चीजों को समझिए, वरना लोग इसी तरह से दीन हक से आपको घेर दें। यही कह कर शिर्क है, बिदअत है, ऐसा हरगिज़। लेकिन अब यही देखिए, पहले जब मैं बचपने में अपनी बात बताऊं, बचपने में बारहवीं शरीफ में जब चांद होता था उसी वक्त सलाम होता था। तब से 12 दिन मुसलसल 5 वक्त मस्जिद में नमाज के बाद मिलाद शरीफ का इंतकाल हुआ। 12वीं शरीफ के महीने में पूरे मोहल्ले में हर घंटे 2 घंटे पे सलातो सलाम की आवाज बंद हो गई। अब हाल क्या हो गया है? कोई तवज्जो नहीं है। क्यों बंद हो गया? लोगों ने किया, साहबा ने नहीं किया, बिदअत की। साहबा करने की जरूरत क्या है? पहले ये बताइए। जब उनके सामने रसूल मौजूद है तो उनको करने की जरूरत क्या है? वो तो खुद जा रहे हैं और दिगार कर रहे हैं, तो उनको करने की जरूरत क्या है? और रही बात करने की, अब यही काम की हदीस सुनिए जिनको मैंने पढ़ा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी मुझसे सीखो और इस्लाम लोगों तक पहुंचाओ। मुझसे सीखो और लोगों तक इस्लाम, ये मफ़हूमी माना बताया मैंने। अब बात करेंगे लफ्ज़ी तर्जुमे की। तर्जुमा यूं होगा, बल्लिगू यानी पहुंचाओ, अन्नी मुझसे, वलो आया अगरचे एक आया, यानी मुझसे जो तुम अल्लाह की बात सीखते हो या जो मैं अहकाम बयान करता हूँ इसको लोगों तक पहुंचाओ। ये हुआ लफ्ज़ी। अब इसका मफ़हूमी तर्जुमा ये हुआ कि मुझसे जो इस्लाम तुम सीखते हो वो दूसरों तक पहुंचाओ, अगरचे एक बात। ये ना सोचो कि एक बात बयान करें, क्या बयान करें, वो उधर बयान करें, और हमारे कुछ बयान नहीं, तुम इस्लाम के ताल्लुक से अगर एक हक बात जानते हो तो दूसरे तक पहुंचाओ। ये नबी करीम का इरशाद। अब दुनिया आगे फरमाते हो हदीसु अन बनी इस्राइल वला हरज, यही है काम की बात। इसी को कहते हैं हिकमत की गुफ्तगू। हकीम ने हकीम की तरह हिकमत भरे अंदाज में बयान किया। हुजूर ने फरमाया बल हदीसु अन बनी इस्राइल, यही तवज्जो सुनिएगा। नबी करीम फरमाते हैं बनी इस्राइल के बारे में आपस में सुनो और सुनाओ, वला हरज, इसमें कोई हरज नहीं है। अब मैं ये सवाल करता हूं, बनी इस्राइल नाम से ताल्लुक क्या? ना उनकी शरीयत ना हमारी, ना उनके नबी ना बनी इस्राइल के नबी दूसरे, शरीयत दूसरी, हमारे नबी दूसरे, शरीयत दूसरी। तो अब बनी इस्राइल के बारे में गुफ्तगू करके हासिल क्या? हम बात उसकी करें ना कि जिससे कुछ फायदा ना। अब बनी इस्राइल की शरीयत में सजदा ताज़ी मान लीजिए हलाल था, तो हमारे को आराम है। अब हम यही लोगों को कहें कि हम उनके यहाँ हलाल था, हमारे का कुछ दिन के बाद यहाँ भी होने लगा। बनी इस्राइल के अहवाल को बयान करने के बारे में हमारे नबी ने क्यों कहा? यही है जिस अब आज के लोग सोशल मीडिया बैठे हुए वो यही तर्जुमा कर देंगे बनी इस्राइल के बारे में सुनिए, कोई बात नहीं, इसमें सुनना जायज है। अरे ये हम भी समझ रहे हैं बनी इस्राइल के बारे में सुनना जायज है, मतलब बताओ इसका मतलब क्या होगा? बनी इस्राइल के बारे में हम आपस में गुफ्तगू करें, इसका मतलब क्या है? हुजूर इस बात से बताना क्या चाह रहे हैं, मकसद क्या? ये कभी नहीं बताएंगे कि मकसद क्या है। मकसद वही है जो इनका मकसद इसके पीछे पड़े हुए हैं कि मुसलमान अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गान दीन को छोड़ दें, यही इनका मकसद है। अब क्या करें मुसलमान, इनको छोड़ के गली गली फिरे, किस लिए फिरे? जन्नत पाने। क्या मुसलमानों का मकसद जन्नत है? बोलिए नहीं, जन्नत है? नहीं।
अगर जन्नत होता तो अबू बकर सिद्दीक इस्लाम सीख के अपने घर चले गए, बेशक उमर इब्न खत्ताब अपने घर चले गए, बेशक उस्मान चले गए और ये अपने घर। ये लोग क्यों मौजूद थे कि इनका मकसद जन्नत का वसूल नहीं था, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह मुलाकात थी। उनकी बारगाह में इन लोगों को अपने आप को मौजूद रखना मकसद। किसी को आसिफ गाजीपुरी ने शेर में कहा कि न जन्नत की ख्वाहिश न दोज़ख से है डर, रहे आपका जलवा या रसूलुल्लाह बस पेश नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा शेर कहा, न जन्नत की ख्वाहिश है न दोज़ख से डर, चाहिए क्या, कहते रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी चाहिए। यही है मुसलमानों का मकसद, क्या है, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल, और इन्हीं चीजों से रज़ा हासिल है। कैसे रज़ा हासिल है? सुनिए, बनी इस्राइल के बारे में हुजूर ने फरमाया कि बयान करो आपस में, यानी बनी इस्राइल कौम के अंदर जो नेक लोग थे, जिन्होंने बनी इस्राइल के जो अंबिया इनाम उन पे नाज़िल हुए, उनकी हिदायत की, उनकी मदद की, उनके साथ खड़े रहे जब तक जब कौमें बर्बाद हुई। यही हुजूर बयान करते हैं कि बनी इस्राइल के जो नेक लोग हैं उनका अपने दरमियान तज़किरा करें। इससे हासिल क्या है तज़किरा करने से? तज़किरा करने से क़ुव्वत ईमान बढ़ती है कि हमसे पहले जो कौमें आबाद थी उन्होंने अल्लाह की राह में किस तरह से कोशिशें करके तबलीग की, हम भी उनकी तरह तबलीग करके तबलीग में आगे बढ़े। ये इसका मफ़हूम है, लेकिन हकीमुल उम्मत है, हकीमुल कौम है, हकीमुल मिल्लत है। तो हुजूर तो हर आलिम गैब व शहादा है ना, सुबह क़यामत तक की नबी पाक को खबर है। तो हुजूर जान रहे हैं कि पैगंबर आएंगे मुसलमानों के लिबास में और इन तमाम चीजों से लोगों को दूर कर देंगे। तो हुजूर ने हिकमत भरे अंदाज में बयान कर दिया कि बनी इस्राइल के बारे में खबरें लो, यानी ऐ मुस्तफा की उम्मत के लोगों, तुम में जो लोग अपनी जिंदगी दीन की राह में सर्फ कर दें और इनका इंतकाल ईमान की हालत में हो, उनके नाम से मैं बिल्कुल सजाना सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मकसद है बनी इस्राइल के बारे में जिक्र करो, यानी बनी इस्राइल के जो लोग नेक थे, जिन्होंने दीन फैलाने की कोशिश की, उनके बारे में आपस में बात करो, उनका जिक्र करो। मकसद यही था कि रसूलुल्लाह की कौम की हिदायत करने के लिए जो लोग अपनी जिंदगी अपना कारोबार लुटा देंगे, उनके नाम से महफिलों का इनेकाद करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। और हर सुन्नत सिराते मुस्तकीम है। अब पता चला इसी हदीस की रोशनी में कि जिक्र हुसैन कर रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं, जिक्र अली कर रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं, अबू बकर का जिक्र कर रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे, गौसो ख्वाजा का जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम से महफिलों का इनेकाद कर रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे। ये सिर्फ जाए तो सवाब नहीं, इसी हदीस से इस्तेदलाल है इस बात। बनी इस्राइल के बारे में चर्चा करो, यानी बनी इस्राइल के नेक लोग। तो हमारी कौम में जो लोग नेक हैं, जिनका तवातुर से खबर साबित है कि इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम में वक्त की, दीन इस्लाम के लिए खर्च की, उनका जिक्र करना खैर के लिए है। और सबसे बड़ी शिरकत जो की दीन की तबलीग में, वो सरकार इमाम आली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। वो तो खुद खुदा का खानदान से पूरे खुदा का आज उनकी महफिल किए हुए हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ जायज़ और सवाब है, बल्कि सुन्नत है और ये सिराते मुस्तकीम। कोई ये पूछे कि महफिल जायज़ नहीं है, सीधी बात सुन्नत है और सिराते मुस्तकीम। इमाम बुखारी की हदीस रिवायत करता है, यही चीजें नहीं बता रहे। आज सोशल मीडिया साइट खोलिए, बस वही एक चीज नजर आएगी, हाथ छोड़े पकड़े, हाँ हाथ बांधे, यहाँ बांधे, किया आमीन जोड़ के कहेंगे दिए। यही हाल उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यही सीखा कि आमीन जोड़ से कहें, दिए से कहें, पूरे बातें पढ़े कि ना पढ़े। अरे उसके अलावा भी तो बात है।
तो मैं हाइट से हाथ बंद करके नमाज पढ़ो, हो जाएगी। यहाँ छोड़ो, यहाँ हाथ करके हो जाएगी। नमाज है क्या? इबादत। इबादत होती कल्ब से है। इस दिल में जब खुदा की अजमत हो, सर को सजदे में रखो, वही सजदा तुम्हारी कलम करता है। बेशक है क्या है, सुभान अल्लाह। लेकिन हकीकत क्या है? यहाँ माने यहाँ यही चल रहा। ऐसी को देख के नौजवान तबका खूब अच्छे दिन सीख के घर में आ रहा है, नाम फैला के नमाज, हदीस में नाम फैला के नमाज, पता ही नहीं है। कितनी हदीसें हैं यार, 500 से ज्यादा किताबें हैं, 500। अब अंदाजा लगा एक हदीस की किताब कोई पूरी पढ़ा है, 500 से ज्यादा है। एक ही मौजू पे हर मुहद्दिस ने हदीस लिखी है। कितने पे अमल करो, कितने पे अमल करो? किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे अमल करो? एक साहब कह रहा है कि हुजूर ने यहाँ हाथ मांग के पड़ी, एक कह रहे नहीं यहाँ हाथ मांग के पड़ी, एक कह रहे नहीं हाथ छोड़ दो। अब आप बताइए क्या करें? अब ऐसे कर लेते हैं कि एक रकात ऐसे कर लें, एक रकात ऐसे कर लें, तीनों पे अमल हो जाए, है कि नहीं? जगह लेते हैं, काफी जगह लेते हैं। अरे दुनिया काफी चाहिए। वो जानवर बात होता है, असल में शैतान आता है, उजलता है, तो उसको जगह दी जाती है कि वहां से गुजरे। इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ, अब अकल लगाएंगे तो आप कुछ समझ जाए। हदीस का नाम लेते आएगा बुखारी का, क्या लेते हैं? बुखारी का। सोचिए कि इमाम बुखारी इमाम आजम अबू हनीफा से 100 या तकरीबन 150 साल बाद पैदा हुए। कब पैदा हुए? 150 साल बाद। 100 बोलिए, 100 100 साल साल, 100 साल के बाद। इमाम आजम का है 100 साल पहले। 100 साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं कि हाथ में नमाज ऐसे पढ़ो। इमाम बुखारी का पैदा हुए 100 साल पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, फिर तीसरी घंटा की, तब किताब जमा की, किताब में होकर पहुंची, अब मुसलमान हुए। क्या इससे पहले मुसलमान नहीं थे क्या? बुखारी किताब से पहले कोई मुसलमान नहीं था? इमाम आजम नहीं मुसलमान थे, उनके वालिद मौला अली की मोहब्बत में कूफा में थे, ये मुसलमान नहीं थे। ये नहीं लोग मुझसे क्या कह रहे बुखारी तुम पढ़ रहे हो, इमाम आजम को मानते नहीं, इमाम आजम इमाम बुखारी के 100 साल पहले आए। अब क्या उस वक्त लोग मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते थे? यहाँ तक यही ना पढ़ते थे। तो इमाम आजम के लोगों ने नहीं कहा कि आप अल्लाह के फूल का हदीस छोड़ रहे हैं, बोलिए उनसे नहीं कहा लोगों ने। और वो वक्त बहुत अच्छा वक्त था कि अक्सर और बेशतर लोग दीन का इल्म रखने वाले। बेशक है क्या है। उस वक्त में जब इमाम साहब ने कहा कि नमाज ऐसे पढ़नी है, तो ये 150 साल बाद लेके आए हदीस वगैरह आए, इसको माने। इनसे पैदा होने से पहले जो लोग मुसलमान थे उनको माने, कि इनके बाद ही पैदा होंगे इनको माने। तो ये ऐसे हो जाएगा कि दीन इस्लाम इमाम बुखारी ने फैलाया है, उनसे तो पहले लोग खाली झुंझुना ही आए। यही बात आ जाएगी ना कि इमाम बुखारी से पहले जो लोग थे वो झुंझुना ही आए, वो इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे, वो झुंझुना ही आते इस्लाम में घबराइए नहीं, कोई कुछ भी कहे हाँ ठीक है सुन ले, जब तक तहकीक नहीं अमल कई लोग दावत देते हैं कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो। तो एक बात याद रखिए, अमल का ताल्लुक इल्म से है। जब तक इल्म यकीनी ना हो कि हाँ ये बात बिल्कुल सही दुरुस्त है, तब तक अमल नहीं। मान लीजिए कि आपकी तहकीक में बाद मालूम पड़ा कि हाँ ये अमल दुरुस्त था, आपने किया नहीं, तो उसका आप पे बवाल भी, उसका आप पे कोई जुर्माना भी नहीं कि आपने तहकीक की वजह से ताबूत, आपने यूं ही नहीं छोड़ा बल्कि तहकीक के लिए छोड़ा। जब तहकीक के लिए छोड़ा तो आप उसके सवाब मिलेगा, न किया था।
अभी जाने मिलते इस्लाम में घबराइएगा नहीं, अपने उलमा के करीब नहीं आते, एक दिन दीजिए बस, जो दिन आप तय करके के बाद आइए बैठिए अब सीख। रोज अगर 1 घंटा भी देंगे तो बहुत कुछ लोग ये सोचते हैं कि बाबा ने मारो ये क्या करना, जब तक फरिश्ता नहीं आता तब तक फरिश्ता नहीं आता तब तक ना का ताल्लुक है ना किसी दीन सीखना चाहिए। दीन सिर्फ उलमा पे नहीं है बल्कि हर मुसलमान का ये फर्ज अव्वल है कि अपने दीन को सीखे, अपने दीन को लोगों तक पहुंचाए, सही दीन पहुंचाए। अच्छा सही दीन पहुंचाने में लोग झगड़ा निकल लेते, हाँ ये भी नहीं, मस्जिद के अंदर ही गाली गलौज हो रहा, क्या हो रहा, ये ऐसे कहना वैसे रुक जाइए, आपके तो माफी के पास झगड़ा मत किसी भी मसले को, आपको लगा ना इत्तेफाकी ठीक रुक जाइए, मस्जिद से बाहर आइए, जिससे ना इत्तेफाकी उसमें आने दीजिए, उससे पूछ लीजिए कि तुमने ऐसा अमल किया, ये अमल कैसे सीखे, कहाँ से, झगड़ा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के दरमियान झगड़ा हरगिज़ पसंद नहीं करता, मेरे बंदे झगड़े हरगिज़, बल्कि सहूलियत से बैठिए, अपने मौलाना के पास जाइए, उससे ऐसी चीजें हुई क्या सही है क्या आजकल लोग ऐसे फिर गए चल रहे हैं ना कि हमको समझ ना आ रहा तो सही है, नहीं समझ ना आ रहा तो गलत है। ऐसे नहीं चल रहा। कुछ लोग का कहना है आपको सलाम समझ में नहीं आता, पूरा समझ में आता। अबू जहल के हाथ में कंगाली ने कलमा पड़ा था, उसको भी समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अबू जहल के हाथ में कंगाली ने कलमा पड़ा था, उसको भी समझ में नहीं आया, तुमको भी नहीं आता, वो भी जया तुम भी छाप, हासिल कुछ नहीं है। बाकी जाने बिदअत के सामने दीन को सीखिए, अपने एक दिन रगबत के साथ अपने दीन को सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। आज में बड़ा नुकसान सारा है, इसकी वजह यही है कि हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, लेकिन मदरसे की तालीम यानी दीन की तालीम नहीं देते। वही बच्चा है जो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है परदेश पैसा कमाने, माँ बाप यहाँ के जब उसके दिल में दीनदारी होगी, अल्लाह उसके मोहब्बत होगी ना, तभी बात में छोड़ के नहीं जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सुबह क़यामत तक अगर ओवैस करनी अपनी वालिदा की खिदमत के लिए वो सहाबी नहीं होगा, रसूल है, लेकिन रसूल के हुक्म कानों तक पहुंचा था कि तुमको भी वालिदैन की एहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। ये बात वो इस कातिल ने सुन लिया था, अपने वालिदा को छोड़ के जाना हमारा, उन्हीं को देखने जाए, उन्हीं का हुक्म छोड़ कर, तो अल्लाह ने भी क्या इज्जत दी, शेखैन पहले 2 खलीफा को भेजा कि जाना उनके पास और पूरी उम्मत के लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह, इज्जत मिली, वालिदैन की खिदमत से इज्जत मिली है, किसी बेटों के लिए नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए उनसे दुआ करा। क्या उन्होंने बात की, हैरान थे वो साहबी जिनको उन्होंने कहा कि जाओ उनके पास दुआ कराओ, उनका क्या उनमें इसके रसूल है और इस दर्जे का है कि अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कि मुझसे कह दिया कि जाओ अपनी उम्मत के लिए वो इस करनी से बुलाओ। हाँ ना, ये तो इंशाअल्लाह ताला मौला ताला हम सभी को हिदायत में आपके साथ ही मदद रखे, ईमान